इतने इसकी एहतियात करनी है। इसने माचिस की तीली ज़मीन पर पड़ी हो ना, इससे नहीं उठवानी। मुझे घर भी बेचना पड़ा, मेरा ज़िंदगी का साथी है, मैंने तो करना है, कुछ भी हो जाए। یہ رپورٹیں ہیں اور یہ MRI کی رپورٹ ہے. میرے خیال میں ادھر ہے، یہ ہے ادھر ماشاءاللہ سامان سارا جو ہے نا ریڈی ہو چکا ہے، جو ہم خراب کر رہے ہیں نا. میک نے اٹھایا ہے پتیلا، اس نے کہا کہ میں پتیلے کی دھلائی کرتی ہوں کیونکہ یہ بیچاری جو نا اکثر بیمار رہتی ہے نا. یہ سب بچے ویٹ کر رہے ہیں کہ کب خیرات ہوگی تو ہم کھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ ہمارے تمام بہن بھائی دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے. الحمدللہ، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، آپ سب بہن بھائیوں کی دعاؤں سے سب خیر خیریت ہے. بس میرا تھوڑا معدے کا مسئلہ بنا ہوا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ٹھیک ہوں. اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے. رات ٹھنڈی ہو گئی تھی لیکن آج اتنی شدید قسم کی گرمی ہے، بس کیا بتاؤں، بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے گرمی. اور شام کی روٹین جو ہے نا ہماری شروع ہو چکی ہے. چار پہیاں وغیرہ ادھر کچھ جو ہے نا باہر نکال لی ہیں اور کچھ ابھی نکال لی ہیں. باقی تندور بھی ریڈی ہونے والا ہے. ہاں جی، تندور تھوڑی دیر کے بعد ریڈی ہو جائے گا. آج جو نا کافی دنوں بعد میں نے شام کو تندور جلایا کیونکہ آج ہمارے گھر میں مہمان، تو اس لیے پھر میں نے سوچا چلیں گھر پہ روٹی بنا دیتی ہوں. سالن ہمارا ابھی بننا ہے، بہت سب چیز کٹائی کر کے سارا سامان جو نا میں نے ادھر اکٹھا کر کے رکھ دیا ہے. تو آج جو نا ارادہ ہو گیا ہے کہ وہ سالن جو ہے نا ساسو ماں کے. ہاں، آج سالن بنایا جا رہا ہے جی اروی اور آلو کا. اروی مجھے پسند ہے، اچھی لگتی ہے، سالن بھی اچھا بنتا ہے اروی کا. ساتھ میں آلو بھی شامل کیے ہیں کیونکہ اروی تھی کم. اروی یہی پڑی تھی، اچھا، ہاں، جو ابھی بلا لے آیا ہے. اور میری طرف سے سب بہن بھائیوں کو سلام ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ سب بہن بھائیوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی دور فرمائے، اللہم اور آمین. اللہ تعالیٰ میری جو ہے نا تکلیف دور کرے. اللہم روک آمین. کے مجھے بات کرنی پڑتی ہے. ہاں، کیونکہ اس کا جو گلا ہے نا کافی مسئلہ بنا ہوا ہے گلے کا. اللہ تعالیٰ صحت کامل عاجل عطا فرمائے. دوائی بھی کھا رہی ہے لیکن پھر بھی وہی کنڈیشن ہے، ذرا بھی فرق نہیں پڑا. بالکل بھی وہ ڈاکٹر ایک اور بتایا ہے، ڈاکٹر اشرف انصاری صاحب، ان کو چیک کروانا ہے لیکن وہ آتے ہیں بدھ والے دن اور جمعے اور اتوار، 3 دن، ہفتے میں 3 دن وہ ادھر ہوتے ہیں. تو آج ہم لیٹ ہو گئے، وہ چلے گئے تھے. ہم نے رابطہ کیا تھا، نمبر ڈھونڈا ہم نے ان کے کلینک کا، لیکن پتہ چلا کہ وہ چلا گیا ہے. پھر جمعے والے دن آپ چیک کروا لینا طبیعت. تو جمعے کو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم جائیں گے، طبیعت اس کی چیک کروائیں گے. اللہ تعالیٰ اسے صحت دے، بس دعا ہے. باقی پریشان کافی ہیں کیونکہ اس کا جو ہے نا آواز بالکل بیٹھ جاتی ہے، کبھی کبھی بالکل نکلتی ہی نہیں آواز، اور گلے میں شدید قسم کا درد شروع ہو جاتا ہے. بس عجیب سی وہ پریشانی بنی ہوئی ہے یار. یہ نا کافی پرانی میری جو نا یہ حالت ہے. اب تو بالکل جو نا حالت بگڑی ہوئی ہے، لیکن پہلے جو نا میری حالت ایسے ہو جاتی تھی جب اب کبھی دہی لے آتا تھا، کھا لیتی تھی، بس میں ٹھیک ہو جاتی تھی. لیکن اس بار تو دوائی بھی کنٹرول نہیں کر رہی. ہاں، بالکل بھی کنٹرول نہیں کر رہے. میں نے لکڑیاں اٹھانی ہے. ہاں، میں نے کل رات سے ہم کافی پریشان ہیں، بہت زیادہ، بہت بڑی، کیونکہ باجی جو ہے نا والد ستار والے، ان کو بہت بڑی تکلیف بتائی ہے. بس MRI کروائی تھی وہ، کل اس کی جو ہے نا رپورٹ آ چکی ہے اور کافی پریشان ہے. کل رات سارے گھر والے بیچارے روتے رہے. سارے روتے رہے، کسی کو جو ہے نا ہوش بھی نہیں تھا، کسی نے کھانا بھی نہیں کھایا. گھر پہ نہیں تھے اور کھانا وغیرہ تو بنا کے رکھ دیا تھا. جیسے واپس آئے جو بچے گھر پہ تھے کسی نے کچھ بھی نہیں کھایا. رات 12 بجے تک سب رو رو کے سب کا برا حال تھا. ساتھ میں تکلیف ہمیں بھی ہو رہی تھی، لیکن اگر ان کے ساتھ ہم روتے تو وہ زیادہ پریشان ہو جاتے. تو اسی لیے پھر ہم ان کو دلاسے دیتے رہے، کہتے رہے کہ اللہ خیر کرے، کچھ نہیں ہوگا.
अल्लाह खैर करेगा। मामू माशाल्लाह अब जैन जो है ना कुछ चल फिर रहा है, अल्लाह ताला सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी दे। अच्छा जो डॉक्टर उन्होंने बताया है ना, वो जिसने ऑपरेशन करना है, वो उन्होंने पैसे बहुत ज़्यादा मांगे हैं, बहुत वो ज़्यादा। चल के आप सब बहन भाइयों से उनकी बात करवाएंगे। हाँ बेचार मैं अभी तक मिला नहीं, इंशाअल्लाह ताला चक्कर लगाते हैं। अल्लाह दराज इसने तो मेरी जान निकाली। मैंने कहा मैंने तो इधर लकड़ी रखी थी, पाँव पे चुभ रही है, क्या है? मैं उधर अभी जैन जो है ना सही तरह से चल नहीं पा रहा। इसको भी लेके जाना है। हाँ, इसका भी इलाज हो रहा है, अल्लाह ताला इन्हें सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी दे। सैम को क्या हुआ है? हैं? फूफो मामू से बात करो, मामू से। सैम मामू मामू ना खास ना खा। हाँ एक मामू तूंगे ना एक ऊपर। अच्छा ये कमी था है? अच्छा क्या हाल है? ठीक है मामू? तबीयत से ठीक है? की में आदा ने वो तो सुनवा चा जोर दा मामू ना खास मामू दे चा ना मामू ना खास मामू अम्मी तो भाजल मामू भाजल सब मामू ना खास तो ना। गर्मी जो है ना वो बुरा हाल कर रही है, दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला रहम फरमाए, बारिशें वगैरह होती रहे, मौसम कुछ ठंडा हो जाए। और तो हवा चल रहा है, हवा जो है ना वो बिल्कुल रुकी हुई है, ज़रा भी नहीं चल रही हवा, इसीलिए जो है ना फिर वो हवा सी बनी हुई है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, अपना करम फरमाए। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। अल्लाहुम्मा और आमीन। आपके भाई की तबीयत जो है ना बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा। बस ये जो चीज़ भी खाता कहता है मेरे जो ना दिल पे है, जो ना बोझ आ गया, मेरी तबीयत जो ना अजीब हो रही है, ऐसे घुटन सी है और अजीब सी कैफियत है, पेट पे गैस हो रहा इसीलिए है। कि रात उधर नहीं जा सका था भाई, इधर ही घर पे था। हाँ, इसलिए मैं उधर नहीं जा पाया। बस ये तंदूर हमारा रेडी होने हाँ वाला है। बस टिक्का हो गया तंदूर। अच्छा वो सालन अंदर खुशबू आ रही है, बन रहा। हाँ सालन आज अम्मी जान के हाथ का खाऊंगा। अम्मी जान जब सालन बनाती थी ना माशाल्लाह क्या ही बात है, वो एक अलग टेस्ट होता है माशाल्लाह। ये भी सालन बहुत ही ज़बरदस्त बनाती है, लेकिन इसके हाथ का टेस्ट और है, अम्मी जान के हाथ का टेस्ट और है। वो बचपन फिर याद आ जाता है, बंदा बचपन में चला जाता है जब छोटे छोटे होते थे और अम्मी जान के हाथ का सालन रोटी खाते थे, वो वक्त बहुत याद आता है। बड़ों के हाथ की जो भी चीज़ हो ना, हाँ। जो भी चीज़ हो उसमें शीरी और स्वाद होता है। बिल्कुल ये मैंने देखा है। मेरा अब्बू जान जो है ना वो लेकर आता था मेरे लिए, थोड़ी बहुत चीज़ें लेकर आता था। मेरी शादी भी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, फिर भी जब वो आता था उसकी आदत बनी हुई थी, वो इतनी सी जो ना टेबा जिसे हम कहते हैं हाँ। वो छुपा के आता था। तो बच्चे जब आपका वही चीज़ लेकर आता था वो भी मैं खाती थी, लेकिन जब अब्बू लेकर आता था ना वो चीज़ हाँ खाने उस का मजा चीज़ ही की कुछ और आस रहती थी इसे कि अब्बू जान आएगा, कुछ ना कुछ उसने लिया हुआ होगा। हाँ। थोड़ी सी भी कुछ यानी कि मिठाई वगैरह कोई चीज़ लेकर वो आता था, जब भी मिलने के लिए आता था। वो डेली का ही आता था, इधर कहवा वगैरह पीता था, ये अपने हाथ से बनाती थी, या चाय कभी बकरी हमारी होती थी, बकरी का दूध वो निकाल के चाय वगैरह भी कभी कभार बना देती थी, अक्सर कभी- कहवा बनाती थी। नहीं अक्सर वो मुझे कहता था कि बेटा मुझे कावा बना कर दो। हाँ बकरी थी, दूध भी था, अगर मैं किसी दिन बना भी लेती थी तो कहता था बाबा मुझे जो है ना कावा बना कर दिया करो। अच्छा मेरे अब्बू की नज़र भी कमज़ोर हो गई थी, वो चल जो है ना वो सोटी की मदद से लकड़ी चलता की था, मदद लकड़ी से की मदद चलता था। लेकिन फिर मेरे घर आ जाता था, हाँ पूछता था, जैसे आता था ना दरवाजे के सामने मेरा नाम लेके पूछता था। अगर मैं ना होती, क्योंकि बकरियाँ वगैरह माल वगैरह जानवर वगैरह थे ना मेरे, तो मैं कभी कभी उधर भी होती थी, तो कोई कहता था कि वो नहीं है, वो इधर उधर गई हुई है। अच्छा बस ठीक है, उसे मेरा सलाम कहना पीछे। हाँ क्योंकि शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जानवर वगैरह गाय भी हमने रखी थी, बकरियाँ होती थी, और उससे जो है ना अपना सिस्टम एक चलता रहता था। दूध भी पीते थे बकरी का अल्हम्दुलिल्लाह, लस्सी भी बनाते थे बकरी के दूध की। जी मामू बुला कर बुला कि मामू वाह भाई वाह, ये ऐसी दिखाने के लिए आया है मुझे। अच्छा
पहला वक्त जो था ना बहुत ही अच्छा वक्त था। वो वक्त याद आता है ना, बहुत अच्छा फील करते हैं, अच्छा फील होता है। अब का जो दौर चल रहा है ना, बस अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम फरमाए, रहम फरमाए हम सब पे। बड़े हालात अजीब किस्म के हैं इस दौर में। बस अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को दीर्घ सलामत रखे, हमारे सरों पे उनका साया हमेशा रहे, हमारी दुआ है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि वालिदैन मेरे पास हैं और अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है कि मैं उनके लिए कुछ कर रहा हूँ। मैं मेरी ज़रूरत नहीं है मैं कुछ कर सकूँ, ये मुझे खुशी है, फ़ख्र महसूस होता है कि वालिदैन मेरे पास हैं और उनकी बरकतें अल्हम्दुलिल्लाह इस घर में हैं। अल्लाह ताला बस उनको सलामत रखे। बाकी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ भी आते हैं इंसान की ज़िंदगी में जो उनके वहमों गुमान में भी नहीं होता, इंसान के साथ वो हो जाता है जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता, ख्वाब में सपनों में भी नहीं सोच सकता। ऐसे मामला ज़िंदगी में आ जाते हैं तो बंदा हैरान और परेशान हो जाता है। बस अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, सबके बच्चों की हिफाजत फरमाए और जो बीमार हैं इस दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह ताला सबको सेहत कामिल आजिल अता फरमाए। गर्मी से मुझे पसीना इतना आ चुका है कि कपड़े मेरे सारे गीले हो चुके हैं। आज भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। मैंने बस थोड़ा सा नाश्ता किया था, बस उसके बाद जो है ना पूरा दिन मैंने कुछ नहीं खाया पिया। आज तबीयत भी अपसेट थी, ज़हनी तौर पे भी कुछ परेशान था और तबीयत भी ठीक नहीं थी। ज़हनी तौर पे इतनी परेशान था, मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत वीडियो बनी है, वो भी लोग में आपने डालनी है। क्यों यार अजीब बन रही है। क्यों नहीं यार, कैसे नहीं इतना देखो पता कहने जरी वीडियो बनी है भैया, तो मैं बड़ी है पता भी ना। मैं वो देखें इंसान का माइंड कभी किस तरह का होता है, कभी किस तरह, और दुनियादारी, दुनिया के निज़ाम, दुनिया का दस्तूर सब कुछ देख के फिर कभी कभार बंदा एक ख़ुद को अकेला महसूस करता है और अजीब सी बंदे की कैफियत हो जाती है। कभी ऐसे मामलात आ जाते हैं ज़िंदगी में, वो सोच के फिर बंदा डिसार्ट हो जाता है। बाकी वो तो चलता रहता है, दुनिया का निज़ाम है। अल्लाह ताला बस सबको सलामत रखे, हम तो यही दुआ करते हैं, खुश रखे, आबाद रखे सबको। अच्छा फ़िलहाल मैं बंद करता हूँ कैमरा, मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। आपके भाई की तबीयत जो है ना बेचारे की ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत व्लॉग बनाया और जो है ना अजीब सी तबीयत होने लगी। मैंने कहा कि आप थोड़ी देर से आराम करें, पंखा चला हुआ है, सो जाएं। और इधर सालन हमारा बन रहा है माशाल्लाह, ये देखें अरवी और आलू। मामी गर्मी है? गर्मी यार गर्मी है। पक्का चला नहीं जा सकते क्यों? जो अगर पक्का चले तो सेक ना लग सी। अच्छा चलें, सालन आप बना लें, मैं फिर रोटी बना लेती हूँ। इधर आटा मेरा पड़ा है, आटा उठाती हूँ, चबियाँ वगैरह उठाती हूँ, बस रोटी बनानी है। आपके भाई को भूख भी लगी है, बेचारे की तबीयत भी ठीक नहीं है। अल्लाह ताला से सलामत रखें। सामान वगैरह इधर पड़ा है, ये मैं इकट्ठा कर लूँ। तंदूर हमारा जो है ना बिल्कुल रेडी है, मैंने निकाब नहीं किया हुआ इसीलिए जो है ना मैंने कैमरा इधर ही रखा हुआ है। कैसी है तबीयत? कुछ खाऊंगा तो तबीयत सेट हो जाएगी। अच्छा वो खाली पेट वाली सिरप हबीबुल्लाह का जो आप ले आए थे वो पड़ा है, ले आऊं? हाँ वो पड़ा है, बस तंदूर भी हमारा रेडी है। मैं वो दवाई ले आऊँ आपके भाई के लिए, वो मैंने रखी थी हबीबुल्लाह के लिए, अब मुझे याद नहीं आ रही। देखती हूँ मैं इधर, अल्लाह करे के खड़ी हो। हाँ वो खड़ी है। बिस्तर वगैरह इधर पड़े हैं, वो मैं बाद में ले जाऊंगी बिस्तरे। अभी जो ना फ़िलहाल 4 पहिए निकालती हूँ क्योंकि अभी बच्चों ने खाना वगैरह खाना है ना, इसीलिए। और इधर जो है ना सफाई सुथरी मैंने सारी कर दी है, सुबह के टाइम भी करती हूँ, शाम को भी करती हूँ। और इस कमरे की जो ना कल हमने ये सारी सेटिंग वगैरह की थी, सफाई भी की थी, सॉरी बत्ती मैंने बुझा दी। और ये 2 तख्तियाँ पड़ी हैं वाटर पम्प की, और ये तख्ती पड़ी है वो जो हमने लगानी है मदरसे में, ये उधर लगानी है इंशाल्लाह, ये कल हम लगाएंगे। अल्लाह ताला
देने वालों को अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह ताला सब के मालो जान में बेपनाह बरकत अता फरमाए। ये माशाल्लाह मट्टी वगैरह जो है ना सारी ख़त्म हो गई है, तो चलती हूँ आपके भाई को दवाई देती हूँ, उसे दवाई पिलाती हूँ। अल्लाह करे कि उसका मैदा जो है ना ठीक हो जाए, बस सेहत है। ये ले, मुझे लगता है ये तो खाली होगा। खाली है, ठीक है, मैंने इसे संभाल रखा हुआ है, खोल कर मैंने देखा नहीं है। ये धूप से तो नहीं पड़ा रहा? नहीं, ये अंदर पड़ा रहा, इसे धूप पे मैंने निकाला भी नहीं है। ये हबीबुल्ला पीता रहा, ढक्कन खुला हुआ था सारा, ये बस ये हबीबुल्ला पीता रहा, ये उसी का काम है। नहीं खाली कह नहीं मामा, दवाई पई है। चलें फिर, मेरा तंदूर रेडी है, आप दवाई पी लें, मैं रोटी बना लूँ, ठीक है? मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर प्यारे बहन भैया, क्या हाल चाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, बस थोड़ा सर में अभी दर्द है। कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो हम बाजी को पूछने के लिए नहीं जा सके। बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसी टाइम हम जाने वाले थे उधर, बस उसी टाइम इसकी हालत बिगड़ गई, तो फिर हम उधर नहीं जा सके। तो अभी हम जा रहे हैं, पता करते हैं बाजी का क्या कंडीशन है उनकी, और हाल अहवाल भी लेते हैं उनसे। अल्लाह ताला उन्हें सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, बेचारे काफ़ी परेशान हैं। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, अल्लाह ताला रहम करेगी। गर्मी से सबका हालात जो है ना वो बुरा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। कल परसों वाले दिन जो है ना मौसम ठंडा था, रात भी ठंडी थी, दिन भी ठंडा था, हाँ लेकिन फिर से गर्मी बढ़ गई है। गर्मी बढ़ गई है क्योंकि हवा रुक गई है। हवा रुकती है तो फिर गर्मी जो है ना वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, बर्दाश्त नहीं होती। ये कपड़े देखो कोई ऑफ कैमरा तो नहीं है, मेरे ख्याल में ऑफ कैमरा आए हुए हैं काफ़ी सारे, अभी फ़िलहाल बंद करना पड़ेगा कैमरा। फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं बाजी के पास, उधर तो सारे ऑफ कैमरा हैं, कुरान पाक का ख़त्म हो रहा है। अल्लाह ताला बाजी को सेहत कामिल अजल अता फरमाए। तो सरदार भाई आप बताएं क्या मसला हुआ, क्या बताया उन्होंने डॉक्टरों ने? पहले तो आपको पता है टैबलेट चल रही है 15-20 साल से, तो जब 15 दिन पहले हम उस डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर अवैस अली खान कैप्टन है के, हाँ तो CM अस्पताल का, तो उन्होंने कहा है कि उसको पता पहले चल गया था, उसने कहा है आप इस तरह करें, मैं आपको 15 दिन की जो है ना दवाई दे रहा हूँ, आप दूसरी बार जब भी आपने आना है तो आपने MRI करवानी है। तो मेरा एक भाई था उधर, दोस्त था, मैंने उससे इल्तिजा की, मैंने कहा भाई MRI के पास पैसे नहीं है मेरे, इतने 25,000 लगता है, आप कोशिश करें। फिर उसने मुझे चिल्ड्रन अस्पताल से 4500 की करवा कर दी है। अच्छा, तो परसों वाले दिन हम इधर बैग पर गए थे, हमारी कैरी का टायर ख़राब हो गया था, मैं इसको बैग पर ले गया था। उधर जब गए तो जब मैंने इनकी वो MRI उठाई तो वो सामान जो था उठाया, तो वो जो फोरेंसिक अपना वो थी प्रोफेसर साहिबा थी, उन्होंने मुझे ये कहा है भाई इसको ये लेकर जा रहे हो ना, इसको इतने इसकी एहतियात करनी है, इसने माचिस की तीली ज़मीन पर पड़ी हो ना, इससे नहीं उठवानी, कोई काम इसका इसने नहीं करना है, उनको आराम दो, सुकून दो। तो ये बात मैं सुनकर मैंने उनकी बात पर तवज्जो नहीं की, बिल्कुल, मैंने कहा ऐसे कह देते हैं, तो मैंने कोई तवज्जो नहीं की। फिर मैं इसको लेकर चला गया आगे। जब मैं उस कैप्टन के पास पहुंचा तो अवैस अली खान, एक पहले मरीज़ बैठा था, उस टाइम बिजली भी नहीं थी जब हम पहुँचे, तो उधर पहुँचे, फिर डॉक्टर साहब ने देखा, जब MRI देखा तो उसने ऐसे पेंसिल में मुँह डाल कर ऐसे कर बैठ गया। उसने कहा मुझे यही खतरा, जो इसके मोरे हैं ना, मोरे के अंदर शाहरग है, मेन खून की नाली जिसे कहते हैं, मेन खून की नाली, वो खून देती है इस तरह इस साइड में, बाएं साइड कहते हैं ना, इस बाएं साइड को खून देती है। ऐसे समझो जब आप एक ड्रिप लगवा रहे हो ना, जब आप ड्रिप लगवाते हैं ना, तो ड्रिप को आप स्लो कर देते हैं, उसमें एक कतरा 1 सेकेंड या 4 सेकेंड 5 सेकेंड के बाद एक कतरा वो पानी का जाता है नीचे। इसी तरह इस
जो रग है ना, मेन रग, इसी तरह एक खतरा जा रहा है, इसका बहुत खतरा है, तो आप जल्दी करें, इसका ऑपरेट करवा लें। मैंने कहा मैं तो इतना ऑपरेट नहीं करवा सकता, मैं इतना गरीब आदमी हूँ, मेरे पास मैं ये नहीं अफोर्ड कर पाऊँगा। मैंने उससे हाथ बांधे, मैंने कहा इसका कोई हल बताएं मुझे। उसने कहा भाई ये आखिरी हल है, आप 5 साल में कराएं, 6 माह में कराएं, 3 माह में कराएं, माह में कराएं, ऑपरेट के बगैर इसका और कोई टैबलेट तक नहीं है। अच्छा। ऑपरेट के उसने मांगे हैं 3,80,000 रुपये बार रियायत, अच्छा। क्योंकि उसने कहा 2,40,000 मेरी फीस है जो सरकारी आप बैंक में जमा करवाओगे, फिर मैं शुरू करूँगा, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं आएगा, बाकी लगेगी वो आपकी टैबलेट, वो आपने वो भी पैसे जमा करवाने, अगर उधर से आपके बच गए बैंक से हम आपको वापसी कर देंगे, अगर पैसे ख़त्म हो गए तो फिर आपको देने पड़ेंगे। ऐसे समझो कि बार रियायत उसने कहा है 3,80,000 रुपये मैं लूँगा, फिर भी उसने ये भी कहा है अल्लाह पाक खैर करेगा। मैंने कहा कोई गारंटी वगैरह है, मुझे गारंटी दे, क्योंकि मुझे घर भी बेचना पड़ा, मेरा ज़िंदगी का साथी है, मैंने तो करना है, कुछ भी हो जाए मुझे ये अपना घर बेचना पड़ेगा, मुझे खुद को बेचना पड़ेगा, मैंने ये काम करवाना है। यही मैंने सोच रखी है, कल से सबको कह रहा हूँ, मैंने अपने भाइयों को कहा है और जो मेरे ये आमिर है सबको मैंने कहा है मेरे साथ जमा करवाओ। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करने वाली है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो बाजी, आप भी टेंशन ना लें। देखें तकलीफ़ अल्लाह ताला की तरफ से आती है और ख़त्म भी वही ज़ात करती है, बस इंसान को सब्र करना चाहिए। बाकी साफ ज़ाहिर है इस वक्त आप लोगों के लिए परेशानी तो है, सब के लिए, हमारे लिए भी, क्योंकि इतना तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, हम भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम कुछ कर रहे हैं इसमें, क्योंकि कम अज़ कम अब 3,80,000 उन्होंने मांगा है, मैक्सिमम ये 5 लाख तक खर्चा तकरीबन हो जाएगा। मेडिसन है, उनके टेस्ट वगैरह जैसे होते हैं वो है, ये तो ऑपरेशन का मतलब कि 4 लाख तो ऑपरेशन का हो गया, बाकी भी खर्चा है, आने जाने का सिस्टम सारा कुछ। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात आसानियाँ पैदा फरमाए। तो प्यारे बहन भी आप सब इनको जानते हैं, अस्तार भाई बहनोई है मेरा और ये मेरी बड़ी बहन है, और इनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है बिल्कुल भी, कोई कारोबार वगैरह, क्योंकि अस्तार भाई ख़ुद मरीज़ हैं, ड्राइवरी करते थे लेकिन डॉक्टरों ने ड्राइवरी से मना कर दिया कि आप जो है ना कोई भारी काम ना करें, तो ये बेचारा कोई काम भी नहीं कर सकता। तो चैनल बनाया था कि अपने बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए, कि घर के अखराजात आपको पता है, महंगाई के हालात, तो इस वक्त जो है ना इन पे बहुत बड़ी मुसीबत आ टूटी है। तो अल्लाह ताला टाले इसको, हमारी दुआ है। तो जो मुखय्यर हज़रात हैं, क्योंकि हमारा काम है फलाही और हमारी यही कोशिश होती है जो ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरत पूरी की जाए, हम कोशिश करें। और इस वक्त मेरा बहनोई, मेरी बहन ये ज़रूरतमंद है, क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकते, ना ही ख़र्चा अफोर्ड कर सकते हैं, ना ये ऑपरेशन इतना महंगा बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर कोई बहन भाई सपोर्ट करना चाहे अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको अजर देगी। तो काफ़ी परेशानी है, सारे परेशान हैं बच्चे, उनके बेटी अल्लाह ताला ने बाजी को दी नहीं, और घर के काम के लिए काफ़ी परेशान होते हैं अस्तार भाई खुद, और बच्चे वगैरह कुछ काम करते रहते हैं। अल्लाह माला के अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करने वाली है। ये 29 साल से है, 29 साल से है ये तकलीफ़, लेकिन अब इस वक्त जो है ना हालत बिगड़ती जा रही थी। एंड है, उसने कहा है बस आप, मैं आपको आखिरी बात करूँ, मुझे अकेले में उसने बताया, उसने कहा है आप जितना हो सके ना जल्द इनका ऑपरेट करवा। अल्लाह ताला की ज़ात करम फरमाए। हाँ बिल्कुल, चैनल से तो आज तक अभी तक एक मेरे ख्याल में पेमेंट भी नहीं आई, कितने साल हो गए हैं, मेहनत कर रहे हैं बेचारे, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा चैनल से। बाकी इस वक्त साफ ज़ाहिर है बहुत बड़ी परेशानी है आप लोगों के लिए, हम दुआ करते हैं और तमाम देखने वालों से मौतबाना गुजारिश है दुआ भी करें, और जो मुखय्यर हज़रात हैं जिनके पास तौफीक है, जितना भी हो सके थोड़ा थोड़ा करके सब मिलजुल कर अगर हम कोशिश करेंगे
تو ان کی یہ مشکل حل ہو جائے گی, آپریٹ بھی ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات شفا کامل عاجل عطا فرمائے. دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اور کوشش کر سکتے ہیں کہ جتنا ہو سکے ہم کریں. باقی اللہ مالک ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کرم فرمائے. اللہ رحم کرے. باجی ٹینشن نہ لو, یا اللہ کا ورد رکھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہو خود اپنی صحت کے لیے. ہم سب بھی دعا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گی. ٹینشن ہوتی ہے لیکن صبر رکھیں, اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں, اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. گرمی ہے, گرمی کو جب کپڑے دھلائی کرتی تھی نا تو کہتے ہاں وہ تو 29 سال ہو گئے ہیں شروع سے یہ میڈیسن چلی آ رہی ہیں. بیچاری دوائی کھاتی ہے تو کچھ فرق پڑ جاتا تھا, لیکن پھر وہی حال. یہ جو لیفٹ سائڈ ہے نا یہ بالکل ڈیمیج ہو چکی ہے اسی وین کی وجہ سے. ہاں کیونکہ یہ کام بھی نہیں کر سکتے ہیں, کوئی کام نہیں کر. ابھی تو اس کا بالکل چلنا بھی مشکل ہے. اس نے کہا ہے کچھ دن بعد نا اگر آپ یہ کام نہیں کرو گے تو ایسے سمجھو کہ آپ یہ زندہ جیسے لاش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے میں اس نے کہا ہے, اس نے کہا یہ سائڈ ہے مکمل, یہ بالکل اس کا جو ہے نا جب اس کا خون نہیں جائے گا تو یہ کام کرنا بالکل صاف ذرا کچھ بھی ہو سکتا ہے, فالج ہے, لکوا ہے, یا اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ دل والی سائڈ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر کرے گی, ٹینشن نہ لیں, اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کو ثواب بنا جیسے انشاءاللہ تعالیٰ. ویسی کوئی پریشانی دور ہوتی ہے. انشاءاللہ اگر تعالیٰ. پہلے پتہ چل جاتا کہ یہ مسئلہ ہے, پہلے تو جس ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے کہتے تھے پٹھے کا مسئلہ ہے. ہاں سب یہی بولتے تھے کہ پٹھوں کا مسئلہ ہے, پٹھے کمزور ہیں, بس وہی پٹھوں کی دوائی چلتی رہتی تھی. اس نے بھی لیکن اب کہا یہ ہے, اس نے کہا ہے آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے. اچھا آپ لوگوں نے, کیونکہ اس کو کوئی پٹھے کی تکلیف نہیں ہے. ہاں کیونکہ وہ وین ڈیمیج ہے, صاف ظاہر ہے وہ بلڈ سرکولیشن ان کی بالکل لو ہے, سلو ہے, وہ پوری مقدار میں نہیں جاتا, تو صاف ظاہر ہے پھر وہ سائڈ تو ڈیمیج ہونی ہے. ہے کہ آپ نے پٹھوں کی دوائی کھلا کے نا اس کے لیے جو ہے نا اردو پر بھی بہت اثر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات رحم کرے گی انشاءاللہ. اس کی دوائی میں نے کھلائی اویس علی خان کی, تو ان کا پورا جسم پر جو ہے نا سوزش ہو گئی, ہاتھ پاؤں مکمل. اس نے مجھے کہا تھا اکیلے, اس نے کہا بھائی میری دوائی اگر کھلاؤ گے نا, اگر اردو کا مسئلہ ہوگا تو ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے نا سوزش کر جائیں گے. ابھی صاف ظاہر ہے جب میں نے وہ ٹیبلیٹ ان کو کھلائی تو ان کا منہ اور ہاتھ اتنا ہو گیا, سوج گیا بالکل. کیونکہ اس نے کہا یہ اللہ رحم کرے, اللہ تعالیٰ کی ذات کرم والی فرمائے. کھوا کے نا اس کے لیے بڑی پریشانی پڑے گا. اب بھی دوائی چل اللہ رہی ہے رحم نا. کرے. ہاں ابھی چل رہی ہے, اسی کی دوائی چلا رہا ہوں. باجی صبح کی نماز جب ادا کرتی ہے نا اس کے بعد ظہر تک آپ یا اللہ کا ورد رکھیں, ظہر کی نماز ادا کر کے پھر اپنی صحت کے لیے دعا کر لیا کریں. باقی اللہ مالک ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کو سبب بنا دے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارے بہن بھائی اللہ والے بہت ہیں اور ضرور کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ رپورٹیں ہیں اور یہ MRI کی رپورٹ ہے. یہ دو ہے, یہ پورے جسم کی ہے, یہ پورے جسم کی ہے. کھڑ مامو, اللہ تعالیٰ کی ذات کرم فرمائے. کو دکھاؤں, میرے خیال میں ادھر ہے, یہ ہے یہ ہے, یہ پر سر ہے اور یہ نزدیک کر کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ صحت دے. ادھر ماشاءاللہ سامان سارا جو ہے نا ریڈی ہو چکا ہے, جو ہم خیرات کر رہے ہیں نا, اور یہ خیرات کا سامان ہے. ارم بیٹا آپ یہ کیوں کھا رہے ہو؟ صبح کا کھا رہے ہیں. ماشاءاللہ قرآن پاک کا ختم بھی ہو گیا ہے اور یہ سب بچوں کو بلایا ہے ہم نے, بیٹا انتظار. ہاں بیٹا ٹینشن نہ لو, آپ کیمرے میں نہیں ہوگی, میں نے کیمرہ نیچے رکھا ہوا ہے. اور ادھر جگہ ہم بنا رہے ہیں, ادھر ہی ہم بنائیں گے وہ چاول, اور چاول بنانے والی میری بھابھی ہے, اور ادھر سبز مرچیں بھی کٹائی ہو رہی ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ, وہ بیچاری جو ہے نا ڈر گئی, اس نے وہ کٹائی کرنا چھوڑ دیا.
बेटा करो करो कुछ करो। महक ने उठाया पतीला, इसने कहा कि मैं पतीले की धुलाई करती हूँ क्योंकि ये बेचारी जो अक्सर बीमार रहती है ना, ये बेचारी कोशिश करती है कि मैं छोटा छोटा काम ढूंढूं। बेचारी ये धुलाई कर रही है। महक मैं आऊँ? अकेली धो लोगी? चलें जी धुलाई कर लें कर लें। हाँ माशाल्लाह, नहीं ये काम करती है माशाल्लाह, अच्छा काम करती है, बस बेचारी तकलीफ में रहती है लेकिन काम अच्छा करती है। ये सब बच्चे वेट कर रहे हैं कि कब खैरात होगी तो हम खाएंगे। अभी कुरान पाक का ख़त्म किया है। बच्चों ओ बच्चों ओए बालो मुंडे सुन से उर्दू चाके में नहीं सुना सरा के चाके में बालो बालो दुआ मांगी हवे। ये फिर दुआ करेंगे जब ये खाना खाएंगे, उसके बाद ये खैरात वो सारी दुआ करेंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं। इधर हम ना आई है। अच्छा जब भी खैरात होती है ना, हमना से पूछें कि आप कितनी प्लेटें खाओगी, ये बताती, आप पूछते हैं कितनी प्लेटें खाओगी? एक। आज एक। मैं उस दिन तो कह रही थी कि 10 प्लेटें खानी है जी। मैं 5 खाऊंगा। इसने 5 प्लेटें खानी है। शक्ल भी आपकी नजर आ रही है बेटा, जी आप 5 प्लेटें खाओगे। चलें जी ये बिरयानी बना रहे हैं, उसके बाद फिर जी मैं पकाने वाला हूँ चावल। पकाने वाले हो? मैं भी बनाने वाला हूँ। हाँ चमचा तो भैया उठा के ले आया है। बड़ा चमचा मैंने उठाया हुआ है। भैया आप बैठे और इंशाल्लाह अभी जो है ना ये बन जाएंगे। कोई मसला नहीं है, बस मैं ये सामान जो है ना इनको रेडी करके दूँ, बनाएंगे खुद बना रहे। ठीक है भाई ठीक है। मैं उधर वीडियो बनाने लग गई, आपके भाई की मुझे लगता है तबीयत ठीक नहीं लग रही। खैरियत? यार गर्मी ऐसे घुटन सी हो रही है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन सुम्मा इस बेचारे की ना तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसको मैं कह रही हूँ किसी डॉक्टर को दिखा दें। कल हमने जाना है ना। ठीक हूँ यार अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो अब ठीक बस नहीं ये लग रहा। गर्मी की वजह से वो हो रहा है, बाकी खैर खैरियत है, अल्लाह खैर करे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको बस दुआ करें कि अल्लाह ताला बाजी को सेहत दे, आपकी तकलीफ को अल्लाह ताला दूर फरमाए, आमीन सबकी तकलीफों को अल्लाह ताला की ज़ात दूर फरमाए, हमारी दुआ है। आमीन बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।